Okay, so what will happen is that this charged particle, it is experiencing force QE at all times because this electric field is always present in this space. तो अगर इस पे ये फोर्स हमेशा लग रहा है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी ऑलवेज इन द राइटवर्ड डायरेक्शन because the force is the only force acting on it in the horizontal direction is QE. Its acceleration is always horizontal. Is this point clear to everyone? Okay. तो अब आपका ये बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी इनिशियल स्पीड क्या है? 0. इसकी इनिशियल स्पीड क्या है? 0 है यहाँ पे जब उसने स्टार्ट किया. With acceleration, because of the acceleration in the rightward direction, it will acquire speed. तो ये क्या करेगा, ये जो वॉल है इसको जब जस्ट अप्रोच करने वाला, इट इज जस्ट अबाउट टू हिट द वॉल, by that time it will have acquired a speed, it would have acquired a speed which will be given by v is equal to under root of 2as. Okay, what is the value of a? QE by m. What is s? Distance d. ये क्वेश्चन में दे रखा है ये डिस्टेंस d, ठीक है ना. तो अब हमको इसकी स्पीड मिल गई. अब होगा क्या कि जैसे ही इसको कोलाइड करेगा विद दैट स्पीड, it will immediately rebound. Its speed is not going to become 0. The direction of the velocity will reverse all of a sudden because E is 1. Sorry, not 0. It is E is 1. It is perfectly elastic collision. Okay. तो क्या होगा, ये immediately collide करके rebound करेगा, सेम स्पीड से रिबाउंड करेगा, जिस स्पीड से हिट किया था उसी स्पीड से वापस रिबाउंड करेगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज रिवर्स. Direction of acceleration is same, but velocity's direction is reversed. So now this QE by m will retard this body and it will again come to rest at the same location. Okay, so that concept you already know. Why the distance traveled will be d again by the time it comes to rest. Okay, that can be done graphically or it can be also done with the help of your equations of motion, right? So I believe that everybody knows at least that much aspect. अब क्या हो रहा है, ये बॉडी पहले राइट में जा रहा है, फिर हिट करके वापस से लेफ्ट में आ रहा है. समझ में आया? तो पहले इधर गया फॉरवर्ड मोशन, फिर इधर आया बैकवर्ड मोशन, फिर वापस से इसकी स्पीड 0 हुई, इसने वापस से रिवर्स किया, इट अगेन स्टार्ट्स एक्वायरिंग स्पीड, वापस इधर आएगा, फिर वापस इधर आएगा. ठीक है. तो दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज ऑसिलेशन. ओके. किसी को डाउट है? सर हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि SHM जो होता है उसमें जो मीन पोजीशन जो होती है उसके ऊपर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है. तो इसमें SHM इसीलिए नहीं है क्योंकि जो एक्सट्रीम से जब वो वापस आएगा तब ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहेगा और उसको उस साइड खींच लेगा. नहीं, लेट मी टेल यू वन थिंग दैट the basic condition, the fundamental condition for a motion to be called SHM is not in terms of a mean position or a location where acceleration becomes 0. The fundamental condition is that its acceleration is proportional to displacement. So if the displacement from the mean position is 0, acceleration will become 0. If you keep on increasing this distance x, acceleration will also keep on increasing. Right? Yes, sir. So Now, here this condition is not being followed. In this problem, the acceleration is always a constant, QE by m. There is no expression of x. अगर x का expression ही नहीं है, so this is basically uniformly accelerated motion. Or you can call this as similar to the situation
where a body is being dropped from a certain height, it falls, hits the ground, rebounds with the same speed, goes up to the same height, then it again falls under the gravity, it goes up. ये एकदम वैसी कंडीशन है. Instead of h you are given d, instead of g you are given Yes, qe sir. bar. Understood. आपको सबको बात समझ में आ गई? Yes, sir. ये वैसी सिचुएशन है. अब इसको हम लोग थोड़ा ग्राफिकली भी एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है ना. व्हेन वी आर डूइंग सो मच analysis in detail, let's also look at this problem in terms of gravitation, sorry, in terms of graphical analysis. तो थोड़ा सा आपका उसका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना. ठीक है, तो ये भाई हमारा एनालिसिस हो गया इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी. बट अब हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ मोशन. तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम इसको यहाँ से वापस इतना आने में लगेगा, ठीक है ना. तो टोटल टाइम पीरियड इज t. It will take t half and t half in forward and reverse journey. Is that clear? Now we can calculate the value of t half with the help of the equation, that is s is equal to ut plus half at square for the forward journey. ठीक है. सर इनिशियल स्पीड 0. यस बेटा. सर बट वो जब कोलाइड करके वापस आ रहा होता है तो उसको उसका जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा वो कम होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब वो वॉल की तरफ जा रहा है वो एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. नहीं, it will be exactly same distance. If there is no friction, no air drag, the point from which it commenced this motion, जहाँ से उसने start किया था, it will again come back to the same level. बट सर एक्सेलरेशन तो उसको अपोज कर रहा है. But the magnitude is same, right? Magnitude थोड़ी different है. It is still QE by m. मैं आप कहो तो मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ. ओके चलिए ठीक है, लेट मी प्रूव दैट. ठीक है, हम लोग एकदम बेसिक काइनेमेटिक्स अब पढ़ रहे हैं. ठीक है, सपोज करो कोई बॉडी है, उसकी इनिशियल स्पीड 0 है. ओके, इन टाइम t with acceleration a, it will cover a distance of d or a displacement of d in t time. How much? ut plus half at square. Okay, this is just for your revision, quick revision of kinematics. तो आपका d का वैल्यू क्या होगा? हाफ at स्क्वायर होगा. तो जब वो यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा t टाइम के ऊपर, यहाँ पे t 0 था और यहाँ पे टाइम t लेट्स से t/2 है, लेट्स से, या लेट्स से t ले लो अभी, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड. तो ये टाइम तुम्हारा अभी t है. तो t टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये हो गया. The distance traveled in this direction is d. ठीक है ना. अब उसकी स्पीड कितनी होगी यहाँ पे? u plus 80. So now this is 80. Now let us say by some mechanism the speed remains same but direction reverses. Now it has the same speed. The speed with which it was approaching this point, now with the same speed it is receding from it. ठीक है. अब इस स्पीड से जब ये इधर आएगा तो इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, रिटार्डेशन होगा. ओके, तो इसकी स्पीड यहाँ पे आने के बाद में, किसी एक पॉइंट पे आने के बाद में क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना. जस्ट होल्ड ऑन. ठीक है ना. तो
उसकी अब हमको ऐसी पोजीशन निकालनी है जहाँ पे उसकी स्पीड फिर से 0 हो जाए, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है, -a के बराबर है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इन दी अपोजिट डायरेक्शन, तो बॉडी बेसिकली रिटार्ड हो रही है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल स्पीड क्या है, ठीक है, दिस इज वी एफ, तो वी एफ इज 0, दैट इज इक्वल टू यू है, तो u की वैल्यू किसके बराबर है, ए टी के बराबर है। एम आई करेक्ट, विद द नेगेटिव साइन, एंड एक्सेलरेशन इज इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन, तो तुम क्या लिखोगे, a इंटू टी डैश, या रिवर्स जर्नी लिख दो उसको। तो इसको टाइम कितना लगा, सेम टाइम लगा, टी डैश इज इक्वल टू टी, तो जितने टाइम में वो यहाँ से यहाँ पहुँचा था उतने ही टाइम में वो अब यहाँ से यहाँ आ जाएगा। दिस टाइम एंड दिस टाइम बोथ विल बी इक्वल। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब हमको ये भी प्रूव करना है कि ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था उसने डी, वो वापस से सेम पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, अब देखो उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखोगे तो इनिशियल स्पीड थी v इज इक्वल टू ए टी, इस रिवर्स जर्नी की बात कर रहा हूँ मैं, और फाइनल स्पीड क्या है, फाइनल स्पीड क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो दिस इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द रिवर्स जर्नी, दिस इज द फाइनल स्पीड ऑफ द रिवर्स जर्नी। ये डिस्टेंस लेटर से डी डैश है, ये डिस्टेंस डी डैश है, रिवर्स जर्नी का डिस्टेंस डी डैश है, ठीक है ना। अब हमको प्रूव करना है कि इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस इक्वल है। ओके, तो तुम कौन सी इक्वेशन यूज करोगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। तो तुम लिखोगे 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो 2a, माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। एक्चुअली तो यहाँ पे भी माइनस साइन है, बट वो स्क्वायर होगा इसलिए कैंसिल हो गया, इसको भी चलो प्लस लिख दो, इसको माइनस कर दो, इनटू डिस्टेंस d डैश। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, अब इसके अंदर तुम, यस सर। अब इसके अंदर तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, ठीक है। उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, s इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया था ना। अब तुम यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करो, डी डैश की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ ए टी स्क्वायर आ रही है कि नहीं आ रही है, ये टाइम टी डैश है, ठीक है ना। तो टी डैश की वैल्यू टी के बराबर है, इसलिए तुमको पता है दिस इज हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर है, देयरफॉर योर डी डैश विल बी इक्वल टू डी, ठीक है ना। तो ये सब काइनेमेटिक्स का पार्ट है। अगर एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड सेम है तो वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब इसको मैं तुमको एक ग्राफिकली भी समझाता हूँ, ध्यान से देखना। ये मैंने ऑलरेडी आज मॉर्निंग के क्लास में किया था, तो आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम दैट डायग्राम, ठीक है। देखो ध्यान से, लेट्स से यू प्लॉट वीटी ग्राफ, ठीक है ना। ये तुमने यहाँ पे वीटी ग्राफ प्लॉट किया, ध्यान से देखना। तो बॉडी की जब फॉरवर्ड जर्नी होगी, ठीक है, बॉडी की जब फॉरवर्ड जर्नी होगी, एक मिनट, ठीक है,
तो ये फॉरवर्ड जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज v एंड दिस इज टाइम t. इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है. तो जब टाइम 0 था तब बॉडी का स्पीड भी 0 था. अब वो एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका स्लोप क्या होगा, a, और इसका स्लोप भी क्या होगा, a के बराबर होगा. ये सुनो, एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है ना. अब ए और टी में क्या रिलेशन होगा. अब हमको ये पता है कि ये बॉडी जिस एक्सेलरेशन से, मतलब फॉरवर्ड जर्नी में जो इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, वो इसका रिवर्स जर्नी में रिटार्डेशन है. इज दैट क्लियर? और इनिशियल स्पीड उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दैट डिस्टेंस इज हाउ मच, डी. फॉरवर्ड जर्नी में डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है वो. तो ये जो एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. तुमको ये पता होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा. तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्या हो रहा है? हम क्या लिख देंगे, व्हाट इज द एरिया, एरिया इज half base. What is the base of this triangle? By symmetry, this base will be t by 2. If this is the total time, then this will be t by 2. So half of base into height. What is height? Height is the maximum speed or the speed with which it is about to hit the wall. तो जो v की वैल्यू है वो कितनी होगी, 80. तो 80 by 2 लिख दिया. व्हाट इज a, qe by m into t by 2. समझ में आ रहा है ना. तब इसको तुम यहाँ पे रिप्लेस कर दो. तुम्हारा एरिया किसके बराबर है, डी के बराबर है. तो डी इज इक्वल टू टी बाई 4 इंटू वी. और वी की वैल्यू कितनी है, टी बाई 4, और वी की वैल्यू कितनी है, क्यू ई बाई एम टी बाई 2. इज दैट क्लियर? अब इसको तुम सॉल्व कर लो, तुम्हें क्या मिलेगा, 8 एम डी अपॉन क्यू ई 4 अंडर रूट इज इक्वल टू टाइम टी. So the result that you are going to get from the graphical analysis is exactly the same if you would have adopted the ग्राफिकल एनालिसिस का भी वही रिजल्ट आ रहा है जो हमने पहले किया था. ठीक है, देखिए ये इन बिटवीन तो हमारे जस्ट प्रैक्टिस के लिए था. लेट मी डिलीट दिस. जस्ट होल्ड ऑन. ठीक है, अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए. एग्जैक्टली सेम मेथड है जो हमने पहले किया था, वही का वही है. ठीक है, आई होप दिस इज द इजी पार्ट, ये आप सब कर पाएंगे. ठीक है, बताइए कोई डाउट है. यस एनीवन, कोई डाउट है. हाँ सर। तो ये बाकी का एनालिसिस आप कर लीजिएगा. ठीक है,
And tomorrow's class will start with electrostatic potential. अब एचसी वर्मा के जितने भी डाउट्स है वो फिर हम पोटेंशियल फिनिश करके फिर करेंगे. ठीक है, चलिए. शुड आई एंड दी सेशन? कोई डाउट है किसी को? ओके सर. नो सर. ओके, चलिए. गुड नाइट. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय.